অমিত ভাষা তোমার জেলায় স্বাগতম। 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 भारत माता की, भारत माता की। वीर अकबर, वीर अकबर। अब की बार अमित भाषा तुम्हार जलाय स्वागतम। मारा उलूकरी दिन अमित भाषा तुम्हार जलाय स्वागतम। 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 भारत माता की। वीर अकबर, वीर अकबर। अब की बार অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি আবারও একবার এসেছিলেন। অমিত ভাষা তোমার জেলায় স্বাগতম। অমিত ভাষা তোমার জেলায় স্বাগতম। অমিত ভাষা তোমার জেলায় স্বাগতম। বন্দে মাতরম। भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अमित भाषा, अमित भाषा। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন দেশের যশস্বী গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত ভাই শাহজি। এখন অমিত ভাই শাহজিকে রিসা দিয়ে এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেবেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। এখন আপনাদের সামনে ভাষণ রাখবেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সম্মানিত সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। আজ আমরা কুমারঘাটে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী, যিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তির কাণ্ডারী মাননীয় অমিত ভাই শাহজি। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আমাদের এই কেন্দ্রের যিনি প্রার্থী প্রীতি দেবী দেববর্মা মহোদয়া, পিপরামাদার চেয়ারম্যান মাননীয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মহোদয় এবং মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং এই কুমারঘাটে আজকে এই জনসভায় যারা সমবেত হয়েছেন প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমার একটা কথা মনে পড়ছে যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এই সিপিএম কে হটানোর জন্য সেই ঐতিহাসিক র্যালি আমাদের অমিত ভাই শাহজির নেতৃত্বে 2017-তে এই কুমারঘাটের এই পিডব্লিউডি গ্রাউন্ড থেকে তার শুরুয়াত হয়েছিল। আজকেও সেই ইতিহাস তৈরি করার জন্য আমাদের অমিত ভাই শাহজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমি বলবো একবার চলে করে তালি দিয়ে আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে একবার অন্তত পক্ষে অভিনন্দন জানানোর জন্য। যেহেতু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তির জন্য সেদিন আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের অমিত ভাই শাহজি আমাদেরকে যে উপহার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে দিয়েছে, আমাদের নৈতিকতার প্রশ্নে আগামী লোকসভা নির্বাচনে
আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমরা দুটি পদ্মা বন্ধু দিয়ে নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা কাজ করছি। কাজে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে আমি প্রত্যেককে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। বলেন আমার সঙ্গে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, আপকি বার, আপকি বার, ফির সে একবার। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য এবং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মাননীয় প্রার্থী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়। আজকে তোমার কাছে আমি ভাষণ দেব না। আজকে কার ভাষণ শোনার জন্য এসেছেন আপনারা? কার ভাষণ? কার ভাই শুনে যায় না তো? শুনি না তো আমি। কার কার কার? বন্ধুরা, মঞ্চে উপস্থিত দেশের যশস্বী গৃহমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের আসলি মুক্তিদাতা আদরণীয় অমিত ভাই শাহ মহোদয়, আর এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য এবং মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য নেতৃত্ব ও বড় মাত্রায় উপস্থিত আমার উত্তর উনকটিয়া ধালাইবাসীরা, একবার বড় জোরে একবার অমিত ভাই শাহের জন্য তালি লাগানো। আমি যে পশ্চিমে প্রার্থী দিচ্ছি, কে কে জানে? হাত তুলে দেখি। আর পূর্বে প্রার্থী কে কে? পূর্বে প্রার্থীর নাম কি? কি নাম? এখানে আছে মঞ্চে। ওনাকে জিতাবেন, জিতাবেন। অমিত ভাই সামনে বলছেন জিতাবেন, পাক্কা? আমি আবার ভাষণ দেব। আজকে আমি ভাষণ দেব না, আমি শুধু আপনাদের ভালোবাসা চাই। আমি আপনাদের যে জোশ এটা চাই। এটা রাখবে 26 তারিখ পর্যন্ত 90% ভোট করবে, মোদীকে সিট পাঠাবে। এখানে একটা কথা মনে রেখে দেখাও, কে কে করোনা টিকাকরণ করেছো? হাত উঠাও তো দেখাও, নিচে করো। মোদীজির 5 কিলো করে চাল কে কে বাজার? হাত উঠাও তো। मोदी घर के पेज हाथ उठाओ तो। अमित भाई सब मिला है। मैं अब আমি এখন আর আমার ভাষণ দেব না। আমি পরে দিদিকে জিতানোর পর তারপরে আসবো তোমার কাছে। 4 জন বিপ্লব দেব আসবে, সবার সঙ্গে জিতের খুশি মানাবে সবাইকে। আবারও একবার আমার সঙ্গে জোর সে মুষ্টিবন্ধ হাত উপরে তোলা, হাত উপরে তোলা, মুষ্টিবন্ধ। সিপিএম কংগ্রেস যাতে শুনে, ঠিক আছে? भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, अमित शाह जी की, जेपी नड्डा की, कुमारघाट वासी की, उत्तर वासी की, धलाई वासी की। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পিতামাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা प्रद्योत किशोर देव मानिक महोदय। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ में मंच में तो सब बैठे हैं। मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में
मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रामफल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है, बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रामफल ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक त्रिपुरा अकॉर्ड साइन किया। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार घाट में मैं बोलना चाहता हूं, मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती, ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति इंडिजिनस हानि गुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब त्रिपुरा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना। ये कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने त्रिपुरा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता है। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है। किसने रखा है? वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, है या नहीं करना है? मोदी जी को इसे प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत
माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आ गया हो, चकमा आ गया हो, जोर से ताली बजाओ सेंटर में चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोर्चा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहाँ पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल भुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्तावित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे दो ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, 4 करोड़ था, नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 75 साल में, 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, पूरा पहले विप्लव देव जी, डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ा। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी,
एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाइयों और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, त्रिपुरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर बोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया, प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है? जरा त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है? जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया, बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, नरसिंहगढ़ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी। और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? नरेंद्र मोदी को समर्थन कर दिया। सुखदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन, सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से मुझे दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे, सिंह जी को जिताएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম